I think we'll start with notwithstanding some technical issue. We'll start the press conference now, as we are all hard pressed for the time. And the moment that one of the link is ready, हम बाकी लोगों से share कर देंगे. Actually, the press conference was expected to go live to some other parts of the country also. Some media persons who could not join through the press conference, but they would have got the YouTube link to see what's happening. So we'll share the recording. We're making the recording of this. We'll share after the PC is over, or the moment the YouTube link is ready. Anyway, so without wasting much time, we have convened this press conference today to share some of the things that are happening. Share some of the things that are happening in the food Rabi marketing season and food procurement. What's happening? So I'll request Secretary Food to kindly give his opening address, and then CMD FCI possibly also may like to add something, and possibly after that we'll have questions. We have received certain questions. We'll take this question only in those orders. It is requested किसी और को question पूछना है तो kindly take down my number 98238 97327. I'm repeating 98238 97327. So all those guests who have joined afresh then should immediately SMS me. I'll take that questions in that order only. बीच में प्रश्न पूछेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मोड में. तो आई रिक्वेस्ट सेक्रेटरी सर टू काइंडली प्रोसीड सर. Thank you very much. Good afternoon, friends. I think I must thank you for joining at a relatively short notice, but we thought it's very important to update you because the Rabi marketing season started from 1st of April, and I especially wanted to thank the state government of Punjab and one of the very important stakeholders who are the Adatiyas along with farmers who have made it possible that the entire procurement operation is going on in full swing. Just to share with you some of the details, state of Uttar Pradesh, state of Haryana, state of Rajasthan, they started their procurement. These are the major wheat producing in the northern area. Operations from 1st of April. Punjab started its operations on their own request from 10th, and Madhya Pradesh is starting from today, 15th of April. And we have made very good progress so far during this season itself. We have made very significant progress of 64.7 till yesterday. A lakh metric ton of procurement of wheat has happened against an estimated target of 427 this year. You might recall that last year we made a record procurement of wheat, which was at 389 LMT, but on the same date till 14th last year, our procurement was just about 60, and therefore the procurement pace at which we have started this year is very high and very significant. We are now transferring in Punjab the MSP amount of the farmers directly into their account, which has been possible, as I said right in the beginning, with the cooperation of the state government and the Adatiyas, who are important stakeholders. They will get their respective commission, which is due under the APMC Act and rules, and also as agreed by Government of India into their account, and farmer will continue to get the MSP amount of their crop into their account. So far we have procured this quantity of 60.7 LMT, which is worth about in monetary terms 12,800 crore at MSP of 1975 per quintal, and 6,60,593 farmers of 11 states in this RMS operations, they have benefited. As we go along, as I said, we hope to touch 427 LMT of procurement
which will be highest ever in the country. This kind of procurement has never happened, and this is going to be the highest ever procurement. So this is what initially I wanted to brief. With me in this press conference, CMD FCI and other colleagues from FCI have also joined, and our purpose was to update you because during the COVID times we have taken extra care and have opened along with the state agencies and FCI more than 19,000 procurement centers across the country. This is with a view to facilitating a very smooth operation, and we have advised all agencies to follow the COVID protocol so that uh, entire operation goes on very smoothly. So this is what in the beginning I wanted to say. I would ask CMD FCI if he wants to add anything further. He can get into those details, and thereafter we can take questions from your side. Thank you, sir. Good afternoon, everybody. From the FCI side, sir, I just need to add a few details, sir. So, with regard to the Rabi marketing season this year, we have started our operation, in fact, from 15th March, with Gujarat and Madhya Pradesh actually starting the wheat procurement from 15th March. The rest, sir, as you have detailed, other states have joined in from 1st of April and Punjab from 10th of April. And there are certain states like Bihar, which would be joining from 20th April. And subsequently, there are states which would be, as per their arrangement, would be joining subsequently. The dates have already been worked out with those states. Sir, putting things in perspective, as you have already said that in last year, till 15th of April. आतिश जी एक सेकेंड. Are the media friends there? उनको आवाज आ रही सबकी? Hello? आ रही है. Okay, because I just got a message from someone ki please start the PC. So PC is on, please. Okay, fine. Sir, please proceed. Yeah. So, sir, as sir had already said that on 15th April last year, we had procured 60 metric tons. Against that, this year, we have procured 64.79 lakh metric tons. Putting things in perspective, I think last year, the COVID year was there, so procurement obviously started late. But even if we compare figures from 2019, which was a normal year, till 15th of April, we had procured 12 lakhs 81,000 metric tons. So this year, because of advanced planning and cooperation from states and their procurement agencies and early preparedness, the states have responded, and the procurement has started in full swing. And another thing that I would like to put in perspective is generally in Punjab, the real procurement starts after Baisakhi as per experience last year. So now we see that maybe from today onwards, the activity will heighten and more and more procurement will take place. So this was the only few facts that I wanted to add, and if the questions come, then we'll give our inputs accordingly. Thank you very much. Thank you, everyone. We'll proceed with the questions that have come. But before I say that, I'll just give my telephone number again, 9823897327. Just in case anyone has got the questions, तो आप मेरे को अपना नाम और organization का नाम बता दें so that I can take the question. Till that time, I'm proceeding with the first question from Mr. IANS, Mr. Jha. आप हैं वहाँ पे? Mr. Jha? जी हाँ, प्लीज प्रोसीड विद. जी, आप प्रोसीड करिए. खबर आ रही है कि कुछ जगहों पर बहुत स्लो पेस से प्रोक्योरमेंट चल रहा है. क्या इस तरह की रिपोर्ट आपके पास भी है? जैसा कि आपने कहा कि फुल स्विंग में चल रहा है, अगर कंपैरिजन को ना देखें तो.
आई थिंक प्रमोद जी आपने 2 लॉगिन करे हुए हैं, उससे इको आ रहा है, एक से लॉग आउट करें और फिर पूछे क्वेश्चन। प्रमोद जी अपना सवाल रिपीट करिएगा 1 लॉगिन के साथ, बिकॉज वी कुडंट गेट द क्वेश्चन राइट। प्रमोद जी, can you hear me? प्रमोद जी, can you hear me? ओके सर, उनका प्रश्न है, मैं बता देता हूँ व्हाट इज ही आस्क्ड सर। सर उन्होंने पूछा है व्हाट wheat procurement is reportedly going slow in Punjab and elsewhere this season, what is the reason? पहला प्रश्न ये है। आई थिंक सर बता दें जवाब उनका, फिर उनका सेकंड पार्ट भी है। सर इसको मैं उत्तर करूं एफसीआई से सर? मिस्टर झा, आप हैं वहां पे? वुड यू लाइक टू रिपीट योर क्वेश्चन ऑन योर ओन, या मैं पूछूं आपकी तरफ से? मैंने पूछा था अभी। सर मिस्टर झा का क्वेश्चन था wheat procurement is reportedly going slow in Punjab and elsewhere in the region, what is the reason? झा जी, आई थिंक आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जैसा कि आपको बताया कि इस साल जो है जो वीट का प्रोक्योरमेंट है वो 64.79 लाख मीट्रिक टन ऑलरेडी हो चुका है कल 14 अप्रैल तक। और अगर उसको आप कंपेयर करें पिछले साल से या उससे पिछले साल से, तब पिछले साल सिर्फ 60 मीट्रिक टन था, तो विच मीन्स नेग्लिजिबल क्वांटिटी। और अगर उससे पिछले साल में भी जाए तो सिर्फ 12 लाख मीट्रिक टन था, तो उससे भी ये 5 गुने से भी ज्यादा प्रोक्योरमेंट अब तक हो चुका है। और इस प्रोक्योरमेंट में जो इस समय लीड है, सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट जो अब तक हुआ है वो हरियाणा में हुआ है। हरियाणा ने भी इस बार बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स उठाए, जिसके लिए हरियाणा की सरकार को और हरियाणा के आढ़तियों को और तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स हैं, जिन्होंने इसको सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। इस समय तक जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा प्रोक्योरमेंट जो है सिर्फ हरियाणा में ने कंट्रीब्यूट किया है। और अभी बैसाखी के बाद पिकअप करता है प्रोक्योरमेंट, और उसको देखते हुए हमें उम्मीद है कि जो रिकॉर्ड इस बार का एस्टिमेट है हम लोग उसको टच करेंगे। तो ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है कि आरएमएस का वीट प्रोक्योरमेंट स्लो चल रहा है। ये इसमें कोई भी सदाकत या सच्चाई नहीं है। सर इनका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, wheat procurement has not begun in Bihar, where farmers are compelled to sell their crops like wheat and maize at throwaway prices. Will center take any step to strengthen procurement process in Bihar? Also, is there any proposal to begin procurement of maize in the state? बिहार के लिए जो प्रोक्योरमेंट डेट है वो 20 तारीख है, जो राज्य सरकार ने ही दी है, और उसमें अभी 5 दिन बकाया हैं। तो हमारी एफसीआई की एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, वो उनकी पूरी तैयारी है कि 20 तारीख से पूरे जोर शोर से बिहार में भी प्रोक्योरमेंट हो। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, अभी उसमें 5 दिन बकाया है, 20 तारीख से उनका प्रोक्योरमेंट शुरू होना है।
Okay. Thank you, sir, on behalf of Mr. Jha of IANS. The एक second मेज के question. लिए एक मेज के लिए मैंने पूछा था, क्या मेज प्रोक्योरमेंट के बारे में? देखिए, मेज के ऊपर और बाकी मिलेट्स जो हैं उसके ऊपर भी भारत सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। मेज के लिए भी एमएसपी अनाउंस किया गया है और सब राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है कि जितना भी उनकी पीडीएस में रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो मेज का और कोर्स ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं और अपने ही राज्य में वो उस खाद्यान्न को जो है वो बंटवा सकते हैं। इसमें दो तरह के फायदे होंगे। पहला फायदा, किसान को उसका मूल्य मिलेगा उसकी फसल का, ये किसान को फायदा होगा। और दूसरा बड़ा फायदा होगा कि लोकल प्रोड्यूस वहीं पर कंज्यूम हो जाएगा। तो दोनों तरह से कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को दोनों को लाभ होगा। तो ये हमारी पॉलिसी है भारत सरकार की और इसके ऊपर जोर देते हुए हम लोगों ने कोशिश की है कि सभी राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपने कोर्स ग्रेन जिनके ऊपर भारत सरकार ने एमएसपी अनाउंस की है उनको प्रोक्योर करें और पीडीएस में बांटें। इसके अलावा बिहार सरकार ने और भी काम किया है। उन्होंने जब भारत सरकार ने पॉलिसी मेज की इथेनॉल को परमिट करने की अनाउंस की तो बिहार राज्य सरकार ने अभी 15 दिन पहले इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी एक स्पेशल पॉलिसी अनाउंस की है जिसके तहत मेज का प्रोक्योरमेंट होगा इथेनॉल ग्रीन फ्यूल की सप्लाई के लिए। तो दोनों तरह से मेज की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है जिससे किसानों को लाभ होगा। Thank you. Thanks. So the next question is from CNBC, Sapna Das. Sapna ji, you there? Sapna ji, are you there? Sapna Yes, Das. absolutely, absolutely. You kindly proceed with the question, yeah, please. So, very good evening, sir. Thank you so much for this occasion, for this opportunity. So, just one quick question because, covering the general macro scene, economy, COVID second wave. So, these questions are now coming in thick and fast, sir. Have any requests started coming from state governments for cheaper grains for migrants, just like last year's initiative of Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana? Anna Yojana. What is the feedback and thinking the central government on this issue? Like your scheme was a big hit last year. So any similar plan for the second COVID wave basically this year? And so we know that, like, for example, Maharashtra CM, like 2 days ago, they made their own announcement of, some kind of free, cheaper food grains, basically wheat and pulse, I think they've already announced. So if you could just enlighten us, sir, on this. And sir, also the food subsidy estimate of this year that finance ministry has kept, like, so as of now, we are within that envelope and you're watching the situation closely. Anything, sir, any observation? Thank you, sir. देखिए, दो चीजों पे आपने जो सवाल किया है, भारत सरकार ने एक तो जो अपनी पॉलिसी थी ओएमएसएस की जिसमें रिड्यूस रेट के ऊपर सभी कैटेगरीज को फूड ग्रेन्स की सप्लाई की जाती है, जिसमें वेरियस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, राज्य सरकारें भी होती हैं, राज्य सरकारों की स्कीम्स भी होती हैं। वो स्कीम अभी भी चल रही है और उसमें करीब करीब 30 लाख मीट्रिक टन पिछले साल जो है एडिशनल फूड ग्रेन्स जो है वो राज्य सरकारों ने और वेरियस वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस ने लिया। जहां तक आपका दूसरा है उसमें कुछ राज्य सरकारों की तरफ से, कुछ जनप्रतिनिधियों की तरफ से सुझाव आए हैं कि उस तरह की स्कीम को दोबारा भारत सरकार कंसीडर करे। तो अभी इस स्टेज के ऊपर मेरे लिए कहना संभव नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन है उसको देखते हुए भारत सरकार की सोच बहुत लिबरल है, बहुत अच्छी है। और जैसा मैंने बताया कि ओएमएसएस के तहत हम ऑलरेडी कंसेशनल रेट्स के ऊपर सभी राज्य सरकारों को जो है वो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके तमाम वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस को भी हम राशन दे रहे हैं। Sir, could you also just very quickly share which are those states or at least the number of states, sir?
And obviously, Maharashtra, will that be part of it because the CM has already announced? So, any thoughts on that, sir? Sorry, thank you. No, there are 3-4 states who have made specific requests. I don't recall the names of those states, but we can share with you those details. That is not a problem. Thank you, sir. Thank you. The next question is from Times of India. Deepak Dasji. Sir, मेरा सवाल एक है, there have been many reports from Punjab that Arthiyas are, taking pre-signed checks. So, are you anyway, taking note of such issues, because that actually in a way defeats the entire purpose of giving money directly to the farmers. देखिए, ये सब रिपोर्ट हमने भी सिर्फ मीडिया में ही देखी हैं, और जैसा मैंने बताया करीब करीब 12,800 करोड़ जो है एमएसपी का अमाउंट जो है फार्मर्स के अकाउंट में जा रहा है, और ये फार्मर के अकाउंट में जाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो एमएसपी है उस एमएसपी के ऊपर किसान का हक है, और उसके अलावा जो भी ड्यूटीज होती हैं, लेवीज होती हैं, टैक्सेस होती हैं इस प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन से जुड़ी हुई, वो भारत सरकार अलग से देती है, और करीब करीब 2.5% जो आढ़तिया का कमीशन होता है वो भी भारत सरकार उनको अलग से देती है। तो ये किसी भी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के ऊपर क्लैश नहीं है, एनक्रोचमेंट नहीं है, उनको जो उनका हक है वो मिल रहा है। पहले सिर्फ ये होता था कि ये पैसा आढ़तिया के अकाउंट के थ्रू जाता था, लेकिन अब ये पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में जा रहा है, उनके हिस्से का पैसा जो एमएसपी है उनके क्रॉप की, और जो आढ़तिया का पैसा है वो सीधे आढ़तिया के अकाउंट में जाएगा। तो नहीं सर, इस मैं तरह तो की ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सर वो एक्चुअली चेक तो क्योंकि वो ले रहे हैं, इसीलिए पूछा सर। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली कहा, मैंने भी ये सिर्फ मीडिया में ही देखा है, तो किसी का क्या प्राइवेट अरेंजमेंट है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, और मैंने खुद बहुत सारे किसान लीडर्स के स्टेटमेंट्स देखे, किसानों के स्टेटमेंट्स देखे कि वो अपने पैसे को अपने अकाउंट में प्राप्त करके बहुत खुश हैं, इस फैसले से वो खुश हैं, और इस फैसले को आढ़तियों ने भी सपोर्ट किया है और राज्य सरकार ने भी सपोर्ट किया है। सर मेरा सेकंड सवाल था, सर my second question was about Delhi government. Delhi government has again come out with this new scheme that doorstep delivery of food grains. So is now center agreeable to that new concept? अभी हमारे पास दिल्ली गवर्नमेंट की नई स्कीम्स के डिटेल्स नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए कुछ भी उसके ऊपर कमेंट कर पाना मुश्किल होगा, बट भारत सरकार की तरफ से किसी भी राज्य सरकार की स्कीम को रुकावट नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया तो इसका एक उद्देश्य था कि पूरे देश में एक ही कीमत के ऊपर हर एनएफएसए बेनिफिशियरी को राशन दिलाया जाए, जिसमें 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में कोर्स ग्रेन और मिलेट्स दी जाती हैं। तो अगर इतने, जिसके लिए भारत सरकार पूरी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी का वहन करती है, तो अगर आप उस रेट के ऊपर मुहैया कराते हैं जो नागरिक हैं आपके, तो हमें कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट कुछ राज्य सरकारें उसमें 1 रुपए या 2 रुपया और अपनी तरफ से ऐड करती हैं और उसको और भी सस्ता करके राज्यों को देती हैं। तो हमारी सोच बिल्कुल क्लियर है कि कानून के तहत आप इससे ज्यादा में लोगों को राशन की सप्लाई ना करें। थैंक यू, थैंक्स दीपक। क्वेश्चन आए हैं विच रिलेट टू द पल्सेस के बारे में, दाल के बारे में, तो वुड वी भी इस पे आंसर करेंगे और इट इज आवर डोमेन सर? पल्स के बारे में वैसे जो है पल्सेस का
प्रोक्योरमेंट जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखता है ऑयल सीड एंड पल्सेस का पीएसएस स्कीम में, और प्राइजेस के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स देखता है। बट अगर कोई खास मुद्दा है उसके ऊपर कोई सर मैं इशू बता है दूं तो मैं सर, जरूर उसको अटेम्प्ट कर सकता हूं। सर इनके क्वेश्चन थे, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पल्सेस प्रोक्योरमेंट एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ बफर स्टॉक ऑफ द पल्सेस क्रिएटेड दिस ईयर? देखिए, पल्सेस का रेट जैसा कि आपको मालूम है इस साल जो है वो एमएसपी से ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से जो पल्सेस का प्रोक्योरमेंट जिस रेट पे होना चाहिए था उस रेट के ऊपर नहीं अभी तक हो पाया। इसके एग्जैक्ट क्वांटिटीज में इस समय आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सरकार का इस स्कीम का पर्पज ही यही था कि किसानों को बेनिफिट देना, और किसानों को इस बार जो पल्सेस का रेट मिला है मार्केट से वो एमएसपी के ऊपर होने की वजह से ही उतना प्रोक्योरमेंट जो है बफर के लिए नहीं हुआ है, और किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए था वो मिला है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट को करना है बफर को बीफ अप करने के लिए, वो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट वो कदम उठा रहा है। Sir, Mr. SP Singh, Jagran se, he wanted to ask a question. Mr. SP Singh? हेलो Mr. SP Singh? Yeah. जी हेलो, आवाज आ जी, रही? आई, प्लीज प्रोसीड। हाँ, सेक्रेटरी सर, एक जानकारी आई है कि जो अभी इस बार स्टैंडर्ड बनाया गया है गेहूं खरीद के लिए, उसको संशोधित किया गया है। तो क्या जो 14% की नमी पहले थी, जिस नमी पर खरीद होती थी, उसे घटाकर 12% कर दिया गया। इसी तरह से सारे मानकों में कुछ न कुछ सख्ती की गई है। तो क्या अभी अचानक ऐसा क्यों किया गया इस साल? देखिए, ये 1995 में मानक बनाए गए थे, और इन मानकों को जो है समय समय पर रिविजिट किया जाता है, और इस पीरियड में जो प्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं, एग्रीकल्चर कलेक्शन प्रैक्टिसेस हैं, मैकेनाइजेशन है फार्म सेक्टर में, वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। क्लाइमेट चेंज भी हुआ है। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर जो है वो गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है, और सभी जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ महीनों की चर्चा करने के बाद इन स्टैंडर्ड्स को जो है वो रिविजिट किया गया है, और इसमें दोनों इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाता है। इसमें किसानों के इंटरेस्ट को भी सामने रखा जाता है कि उनका अहित नहीं होना चाहिए, और साथ में ही जो कंज्यूमर है उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है, जो पीडीएस का है, जिसका अपना से नहीं है, वो जो सरकारें उसको प्रोक्योर करके सप्लाई करती हैं उसी क्वालिटी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, उसके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ये जो गोदाम है, जो जिन भंडारण जहां किया जाता है इन चावल और गेहूं का, उन गोदामों की हालत इतनी तंग हाल है, इतनी खराब है कि क्वालिटी किसानों से खरीदने के बाद गोदाम में जब माल आता है, इसके बाद जब पीडीएस को जाता है, इस दौरान इतना खराब हो जाता है कि 6-7 हजार करोड़ का माल खराब हो जाता है। तो इसके लिए भी कुछ, इसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए भी कुछ किया जा रहा है? इसके लिए भी कुछ कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपका ये पर्सपेक्टिव है और जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है। एफसीआई का लास्ट ईयर का और ईयर बिफोर लास्ट का जो स्टोरेज के दौरान जो डैमेज था उसका परसेंटेज जो है 0.004 एंड 0.006 सिर्फ था, टोटल भंडारण का, टोटल स्टोरेज का। तो एक जो जनरल परसेप्शन है जिसके ऊपर कमेंट्स किया जाता है कि ये खराब हो जाता है, वो मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि वो सही नहीं है। हाँ, इसमें और सुधार क्या किया जा सकता है कि ये 006 और 004 और भी 0001 हो जाए,
उसके लिए मॉडर्नाइजेशन का एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जा रहा है बहुत जल्दी, जिसमें हमारा शिफ्ट व्हीट के लिए हमारी कोशिश है कि 2024 तक 24-25 तक ये हम सारा का सारा जो है वो मॉडर्न स्टील साइलोज में स्टोरेज करें और कन्वेंशनल गोडाउन जिसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं उनको हम धीरे धीरे फेज आउट करें। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेयर हाउसेज, आपने देखा होगा कि इस साल हमने कैप जो कवर्ड एरिया प्लिंथ ओपन टू स्काई गोडाउन्स होते थे उनको हमने मना कर दिया और उसके बदले हमने जो भी भंडारण की कैपेसिटी हमारे पास थी उसमें 20% ऑलरेडी प्रोविजन था स्टैकिंग को 174 करके कि उसको हम 20% ज्यादा कैपेसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कवर्ड वेयर हाउसेज में। और इस एक स्टेप से हमने जो है करीब करीब पूरे देश में 816 लाख मीट्रिक टन के एफसीआई के स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस के सीडब्ल्यूसी के और राज्य सरकारों के हायर्ड वेयर हाउसेज भी इसमें इन्वॉल्व है, उनकी कैपेसिटी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रफली 160 लाख मीट्रिक टन एडिशनल कैपेसिटी हमने क्रिएट कर दी without spending any additional money, but now we will be moving to modernization. Already इस साल भी हमारे कुछ साइलोज ऐड हुए हैं। एक अभी रिसेंटली अहमदाबाद के पास ऐड हुआ है 50 लाख मीट्रिक टन का, 3 और ऐड होने वाले हैं। और इवन राइस साइलो के ऊपर बक्सर में हमारा पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है कि जिससे कि राइस को हम जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी साइलो में करें स्टोरेज का, जिससे कि जो आपने का जो परसेप्शनल इशू है और साइंटिफिक स्टोरेज क्वालिटी को और इंप्रूव किया जा सके। सिंह साहब, अगर आप जाना चाहें, वी ऑर्गेनाइज अ विजिट आपकी एट वन सम ऑफ दी साइलोज स्टोरेज फैसिलिटीज। मे बी आप और भी जानकारी और भी मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो बताइएगा, विल हेल्प यू आउट। हाँ, लेकिन सर साइलोज की संख्या बहुत कम है अभी, बहुत सीमित है, लाखों में, मुश्किल से 10 लाख भी नहीं होगा गेहूं रखने के लिए। हम खास तौर नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको जी। हम बहुत जल्दी, हमारी कोशिश है कि 100 लाख मीट्रिक टन से ऊपर पहुंचाएं। होना चाहिए जी। थैंक यू सर। सिंह साहब, आपकी अलग से बात करा देंगे, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। जी। और सेक्रेटरी साहब जी अपना सीएमडी एफसीआई के साथ आपकी भेंट करा देंगे। पूरा बहुत अच्छा आपका मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा। ये अगला प्रश्न सर, एक 2 प्रश्न और आए हैं, समय कम है मैं जानता हूँ। एक सर, सोशल मीडिया पे 2 इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन आ रहा था बार बार, वही फिर यहाँ पर आया है अभी जस्ट, हमको यूट्यूब देख के किसी ने भेजा है कि कैन वी से दैट आफ्टर दैट वन नेशन वन राशन कार्ड थिंग, now the nation has achieved that great goal of single DBT platform, मतलब single DBT regime, कि अब ये हो गया पंजाब के साथ। Can we say this with confidence? बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें राज्य सरकार हरियाणा की भी और पंजाब की भी पूरी तरह से ऑन बोर्ड है। हरियाणा ने भी इसी साल किया है डायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ द एमएसपी अमाउंट इन फार्मर्स अकाउंट। So both Haryana and Punjab, they have now joined, and therefore we can say that yes, as far as transfer of the farmers' money of their crop is concerned, it will now be through DBT mode into their account. We can certainly say that. Okay, sir. This is India. पैन इंडिया सर, जिनका प्रश्न ये था सर। पैन जी हेलो जी जी सर, अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न, अगर किसी का प्रश्न और नहीं आता है, आफ्टर दिस विल क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिस्टर प्रभु दत्त है फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, आप हैं मिस्टर दत्ता, प्रभु दत्ता जी? हेलो हेलो, प्रभु दत्ता जी आप हैं वहां पे? ओके सर, इनका क्वेश्चन मैं बोले दे रहा हूं
First, so can we get state-wise procurement and arrival data with year-ago period till now and on a daily basis? Second, when procurement started in Madhya Pradesh? जैसा कि अभी सीएमडी एफसीआई ने बताया, गुजरात और मध्य प्रदेश में थोड़ा पहले शुरू हो जाता है, तो 15 मार्च से वहां पर शुरू हो गया था, और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से, पंजाब में 10 से शुरू हुआ, और अब बिहार में जो है 20 तारीख से शुरू होगा। तो अलग अलग राज्यों की उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिफरेंट होती है, और हमारी हर डे जो है लेटेस्ट अपडेट सोशल मीडिया पे भी हम रिलीज करते हैं, प्रेस रिलीज भी देते हैं। तो जो अराइवल्स हैं और जो प्रोक्योरमेंट है वो डाटा पब्लिक डोमेन में हम डालते हैं, एंड दे कैन सर्टेनली बी एक्सेस्ड बाय एनीबॉडी। ओके सर, किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है? सो आफ्टर दैट विल क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस देन। So just a very small add-on, sir. You were talking about this these quality specification norms. Somebody has asked the question. So have they been notified, sir? Because earlier, I suppose it was at a proposal stage. So have the new norms now kicked in, sir, for the procurement, the quality specifications, the change ones? Yeah, Regarding the the proposed quality revision. specification, Sorry, sir. the quality specifications for certain things have already been notified, and for some of the things will be notified. So nothing is done on the ground without a notification. A government notification is Sir, must. So what is happening Sir. today will happen on the basis of the already notified specifications now, and what will happen in future will be on the basis of the notification issued then. मैं दीपक दास बोल रहा हूँ. I have last maybe one question. Oil seeds and oil thing comes under your jurisdiction, not under consumer affairs. So can you tell us, because edible oil prices are like hitting people very badly. Anything is being done because everyone is now talking about it. देखिए, ऑलरेडी आपको मालूम है, जैसा कि हम लोग करीब 56% जो हमारा कंजम्पशन है ऑयल का, वो इंपोर्ट्स के जरिए पूरा होता है, लेकिन सरकार की एक कोशिश है कि इसको देश में बढ़ाया जाए, और इसके प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने नेशनल ऑयल सीड मिशन तैयार किया है, और कोशिश ये है कि जो डोमेस्टिक डिमांड हो उसको ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू ही मीट किया जाए। इस साल खास तौर से जो प्राइसेस में आप राइज देखते हैं, उसकी मेजर वजह यह है कि इंटरनेशनल ऑयल सीड्स का बहुत सी जगह एक तो डैमेज हुआ, क्रॉप का डैमेज हुआ, जिसकी वजह से जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पर सोयाबीन की फसल कम हुई, यूक्रेन में जो है वो सनफ्लावर की फसल कम हुई, एल नीनो की वजह से प्रोडक्शन में फॉल आया, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक ऑयल्स थे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा और उनका प्राइसेस भी ऊपर गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में किसानों को भी फायदा हुआ, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे सनफ्लावर हो, चाहे कैस्टर सीड ऑयल हो, सभी के प्राइसेस जो हैं वो एमएसपी के ऊपर चल रहे हैं, जिसकी वजह से किसान को उसके जो उत्पाद है उसकी सही कीमत मिल पा रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना ही उसके प्राइस के ऊपर कंट्रोल करने का सबसे अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि जब तक हमारी डिपेंडेंस, मेजर डिपेंडेंस इंपोर्ट्स के ऊपर रहेगी, तब तक हम ससेप्टेबल होंगे इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशन को लेकर के, और उस दिशा में काम चल रहा है। थैंक यू सर। सर, आई रिक्वेस्ट सीएमडी एफसीआई सर की जितना भी ये प्रोक्योरमेंट का डेटा है वो सर हमें दे देंगे, सो आई पुट मीडिया को सब दे देंगे, अभी उनके ग्रुप पे डाल देंगे, सो दे विल बी हैप्पी विद दैट इंफॉर्मेशन। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। श्योर।
Thank you all. Thank you for joining us, and thank you, Secretary Sir, CMD Atish Ji, Saab, and all the media friends for joining us at a very short notice. Thank you. We'll be staying in touch. Stay safe and healthy. Goodbye. नारायण साहब एक क्लेरिफिकेशन जानना चाहता था। पूछिए, सर को जाना तक नहीं, बताइए इन केस क्या पॉसिबल। ये स्पेसिफिकेशन जो है वो इसी सीजन से लागू है या अगले सीजन से लागू होगा नया स्पेसिफिकेशन? देखिए, मैंने आपको बहुत क्लियर जवाब दिया कि जो अभी स्पेसिफिकेशन नोटिफाइड हैं वो अभी लागू हो रहे हैं, जो फ्यूचर में नोटिफाई होंगे वो फ्यूचर में लागू होंगे। थैंक यू धन्यवाद वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।